हे पीप्स, दिस इज सोनिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम जो वीडियो देखने वाले हैं दैट इज़ वेरी स्पेशल वीडियो। दिस इज़ अबाउट द वुमेन इन इस्लाम एंड उसको एक रैप की शक्ल में जो है पेश किया गया है। सो हम इसको पहले देखते हैं। इसका जो टाइटल है वो है द ग्रेटेस्ट वुमेन स्पोकन वर्ड और चैनल जो है वो है टॉक इस्लाम। और इस वीडियो का जो लिंक है वो आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप ओरिजिनल वीडियो ओरिजिनल क्रिएटर को भी चेक कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। सो चलें, बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले हम वीडियो देख लेते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो 1 2 and 3। You know, something must be wrong when almost every single song has sex as its basis. When rap stars get famous after making lyrics that are shameless. When a woman is expected to sleep with a man who doesn't even know what her name is. And when artists are paid to degrade the very women that have made them. To the point they are nothing more than pieces of plastic that we can dispose of once they are no longer attractive. It's sickening and sadistic that this world's become so misogynistic. And you can call me unrealistic, but just listen to the statistics. 7 in 10 men view porn while over 75 million are addicted. 68 million requests a day for pornographic pictures, making 1 in 4 searches sexually related. It's like nobody even knew she existed until she got naked, degraded and abused over and over again just to gain millions of views. It's a shame we've subdued to a definition of beauty which is so misconstrued as we judge each other's looks off of Facebook likes, Instagram pictures to filter off what we really look like. See, we are so obsessed with our outside, we have slowly lost sight of who we really are in real life. I mean, it's sad to see so many teens lose their self-esteem. Looking at these magazines thinking they have to look like what they see. Please, you are worth much more than a 2D image on a screen. You are a living, breathing human being. If only you knew what you really mean. Just look into your history books and begin to read of all the girls in the world who were capable to achieve, and you will surely see with certainty females like Fatima al-Fihri, who opened the first ever university, Rufayda al-Islamiyya, the first nurse to perform surgery, and Aisha bint Abi Bakr, the greatest female scholar in eternity. It's a shame you probably haven't even heard of these great female prodigies. Honestly, we don't need to give up our modesty in order to be successful. For you are worth much more than a commodity that is sexual. You have so much more potential if only you knew your worth. You could be like the greatest of all women to have walked this earth, like Mary, the mother of Jesus, chosen by Allah to be an example for the believers, a woman who stood strong even when she was abused, falsely accused and ridiculed for things she'd never ever do, so it didn't really matter when there was nobody else beside her, for she knew that God was Ar-Razzaq and her ultimate provider, and she had a trust in Him alone. Just like Asiya, the wife of Fir'aun, a woman who was brave and courageous, stood up for what was right and didn't let anybody change this. A woman who was fearless and laughed in the face of death, for she gave up the riches of this life for a palace in the next. Next up, Khadija, the mother of the believers, a wealthy merchant who had nurtured the Prophet for over 25 years, his first wife, the love of his life, and the mother of his kids. She was the first to believe in him when nobody else ever did. She just is, beyond any words that can make you understand. So much so that even Allah sent her His salam. She was grand and Allah assured her, just like her daughter, Fatima, the master of all women in paradise, a woman who would shine so bright she was nicknamed as Zahra, the splendid one with the most generous of hearts,
A woman who gave up so much of her food she had no choice but to fast. She would fight on behalf of her father even as a little girl. And such are the examples of the greatest woman in the entire world. And it had nothing to do with how they looked, but for who they truly were. So ignore the standard of success defined by society, when God has said that the best of mankind are those who have piety, regardless of your shape, your color, or your race. For God does not look at your bodies, nor does He look at your face. Rather, He looks towards your heart and checks your faith. So at the end of the day, it doesn't matter what the people say or who they think you are, when you could be like the greatest of all women in the eyes of Allah. The greatest woman. Truly amazing video, I would say. मतलब कहाँ से शुरू करूँ? इन्होंने जो टॉक इस्लाम है, इनकी मैंने काफ़ी वीडियोस चेक करी इनके चैनल पे. ये बेसिकली ही ऑलवेज टॉक अबाउट इस्लाम और इस्लाम के रेफरेंसेस देके ये बात करते हैं. बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे ये बात करते हैं. बट इस टॉपिक पे जो इन्होंने बात किया है, आई अग्री टू some extent. I would not say that I agree 60-70%, maybe more than 90%, more than 95-96% I agree, right? Because इन्होंने बहुत सेंसिटिव चीज़ों को उठाया है, बात की है. Yes, आजकल अगर मैं बात करूँ, मतलब like he want to say कि जो women हैं basically, उन्होंने इस्लामिक वे में, इस्लाम के रिलीजन के हिसाब से फीमेल्स के बारे में बताया है कि व्हाट फीमेल्स हैव बीन आस्क्ड टू डू. और उन्होंने कुरान में से बहुत सारे जो स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में एग्जाम्पल भी दिया है कि किस तरह से उन्होंने ट्रस्ट रखा अल्लाह पे और किस तरह से दे वर स्ट्रॉन्ग बाय अल्लाह, दे वर स्ट्रॉन्ग इन अल्लाह, दे वर स्ट्रॉन्ग इन देयर बिलीफ, दे वर स्ट्रॉन्ग इन देयर culture or maybe the things they were following. So he was certain, he was right to some extent. Some extent I would say that more than, मतलब almost 100% he was right. Because देखिए क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और बहुत सारे लोग कहते हैं, मतलब मे बी मेरी कई बातों से आप लोग शायद एग्री ना करें, बट येस हमें ये बोला जाता है कि द क्लोथ्स वी वियर, द वुमेन चूजेस टू वियर द क्लोथ्स, उस हिसाब से जो लोग हैं वो रिएक्ट करते हैं, राइट? और जो वुमेन है, दैट इज़ नॉट अ थिंग फॉर फिजिकल नीड्स ओनली, राइट? इट इज़ मोर देन दैट. और किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए ज़रूरी नहीं है दैट यू हैव टू जस्ट शो ऑफ योर बॉडी और यू हैव टू वियर सच क्लोथ्स. बट यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर हम आज की बात करें, सो देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशंस, राइट, जहाँ पे फीमेल्स को शायद, मैं आई एम नॉट लाइक सपोर्टिंग कि हाँ जी बिल्कुल ही 2 pieces क्लोथ्स वो पहने और इस तरह से, बट येस according to their profession, some females has to wear such clothes. So now there is a question कि do men can control their self? Can they respect a woman who is not totally covered? So बहुत ज़्यादा ये मैं ये बोलूँगी कि क्या बोलेंगे, इस पर डिबेट हो सकती है, ये बहुत सेंसिटिव इशू है. बट येस, मैं बहुत सारी चीज़ों से अग्री करती हूँ कि आजकल लोग फेसबुक, सोशल मीडिया पे जिस तरह से पिक्चर्स डालते हैं और उसको उस पर लाइक्स के हिसाब से आपका स्टेटस समझते हैं कि मेरे इतने लाइक्स आए हैं, ठीक है, अपनी हर चीज़ मैं आपको अपनी एक चीज़ शेयर करूँगी कि बहुत टाइम हो गया है, आई थिंक मोर देन 1.5 year 2 years आई हैव स्टॉप पुटिंग, जैसे एक आया था ना फेसबुक वगैरह पे कि हम चेक इन करते थे, हम जहाँ भी जाते थे हम चेक इन करते थे. सो मुझे बीच में बहुत आदत पड़ गई थी, वेर एवर आई वॉज गोइंग आई वॉज चेकिंग आउट, हाईवे पे हूँ, कॉफ़ी पीने गई हूँ, खाना खाने गई हूँ, ये वो, आई एम चिलिंग, फीलिंग हैप्पी. तो
और बहुत ज़्यादा शो ऑफ जैसे नहीं हो गया कि हम ये खा रहे हैं, हम ये पी रहे हैं, हम ये पहन रहे हैं, हम ये जा रहे हैं और ये कर रहे हैं, सारा कुछ मतलब सोशल मीडिया पे डालने लग गए थे, अभी भी लोग डालते हैं, राइट। देन वन डे आई रियलाइज, मैंने कहा यार ये क्या लाइफ है, वाई, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जितना हम शो ऑफ करते हैं, ये मेरा बिलीव है, उतना ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, किसी की शादी हो रही है, कोई घूमने गया, कोई हनीमून पे गया, कोई कहाँ खाना खाने गया है, तो पिक्चर्स क्लिक करके एल्बम्स में लग जाती थी, राइट। जब कोई आपके घर पे आता था, बहुत क्लोज डियर वंस, नियर वंस है ना, तो उनके साथ हम वो एल्बम देखते थे, फिर हम अपनी मेमोरीज शेयर करते थे, बातें करते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उस टाइम पे क्या होता था, लोग बहुत तरक्की करते, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मोर ऑफ पीपल, अगर आपके 1000 लाइक्स है ना आपकी फोटोज पे, या 1000 कमेंट्स है, तो उसमें से आई थिंक 850 900 पीपल जो है ना, दे आर नॉट एक्चुअली हैप्पी फॉर यू ऑन सोशल मीडिया। उनको ये लगता है अच्छा ये शो ऑफ कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मुझे, मेरे ऐसा मानना है कि मोर पीपल आर नॉट हैप्पी व्हाट यू आर डूइंग, सो उसमें बहुत सारी नेगेटिव वाइब्स आपको हिट करती हैं। तो मैंने बंद कर दिया है, मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा इस तरह से शेयर नहीं करती हूँ अपने फेसबुक के, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हमारी अपनी होनी चाहिए एंड वी शुड नॉट शो ऑफ। और एक चीज़ और इसमें मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि येस, हम जब बहुत ज़्यादा हम दिखाते हैं कि हम खुश हैं, ये है वो है, बट एक्चुअली में हम नहीं होते। आपको कभी जोक आता है, हम उस पर ऐसे बहुत ज़्यादा स्माइली वाला और आंखों से पानी आने वाला स्माइली हम भेज देते हैं, पर क्या एक्चुअली हम इतना हंस रहे होते हैं, हम कभी भी नहीं हंस रहे होते उतना। सो हमारा जो वो फेक लाइफ है, आई थिंक सोशल मीडिया लाइफ इज़ अ फेक लाइफ। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें उस पर शेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज आज के टाइम पे वो एक वे है, दैट इज अ वे ऑफ लाइफ। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि उसे बंद कर दे, बट देयर हैज टू बी अ लिमिटेशंस। ऐसा नहीं है कि आप खा रहे हो, आप पी रहे हो, आप सो रहे हो, एवरीथिंग हैज टू बी अपलोडेड ऑन सोशल मीडिया। एंड येस, मैं ये भी अग्री करती हूँ कि जो वुमेन है, जब वो, अब बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप किसी भी रिलीजन उठा लीजिए, आप हिंदुइज्म उठा लीजिए, आप क्रिश्चियनिटी उठा लीजिए, आप सिखिज्म उठा लीजिए, आप इस्लाम इस्लाम के बारे में देख लीजिए। हर रिलीजन में बहुत सारी स्ट्रॉन्ग फीमेल्स हुई हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ा। they were all following their culture, they were all following trusting their gods, and they were doing fine, they were doing great. उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया। मदर टेरेसा को ले लीजिए आप, क्या थी वो, शी वॉज नन, राइट। उन्होंने कितना नाम बनाया है। कल्पना चावला, बहुत सारे एग्जाम्पल है, राइट। यू डोंट हैव टू बी लाइक, आई डोंट, ठीक है उन्होंने उस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया है, बट आई डोंट थिंक कि हर वुमेन सिर्फ न्यूडिटी या इस तरह की चीज़ों से ही आगे बढ़ रही है या उसी चीज़ से खुश है। आई थिंक 1% ऑफ वुमेन ऐसी होंगी जो इस तरह की सोच रखती होंगी, बट 99% वुमेन, दे आर सेंसिटिव एंड दे नो उनको क्या करना है, कब क्या पहनना है। सो बट बहुत अच्छी वीडियो है इनकी। बहुत सारे उन्होंने टॉपिक्स टच किए हैं, टच बेस किए हैं, ठीक है। उन्होंने विद डेटा उन्होंने शेयर किया है। एंड मैं इसके कमेंट्स पढ़ रही थी, राइट, इस वीडियो के। आई थिंक एवरी कमेंट इज अबाउट दैट दे हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम, दे गेट टच्ड बाय दिस वीडियो, ठीक है। बहुत सारी वुमेन्स के मैंने कमेंट्स पढ़े जो परेशान है किसी की बुलिंग की वजह से, या उनको डिग्रेड किया जा रहा है, या किसी कुछ इस तरह के थॉट्स उनके हैं, और ये वीडियो देखने के बाद दे हैव डिसाइडेड टू कन्वर्ट इनटू इस्लाम। सो इस तरह के काफ़ी सारे इस पे कमेंट्स थे। सो आई वुड से कि आप इसको ईयरफोन्स लगा के दोबारा से सुनिए अगर आप वुमेन हैं। या इन्होंने एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, इस वीडियो के नीचे इन्होंने जो डाला है वो ये लिखा है कि द ग्रेटेस्ट वुमेन ऑफ ऑल टाइम आर नॉट ओनली द बेस्ट ऑफ एग्जाम्पल फॉर वुमेन टू फॉलो, बट दे आर ऑल्सो द बेस्ट ऑफ एग्जाम्पल फॉर मेन टू रियलाइज द वैल्यू एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ अ वुमेन। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज फॉर मेन ऑल्सो, like and for women also। और आई अग्री 80-90% चीज़ों से मैं अग्री करती हूँ। और मैं सिर्फ ये यहाँ पे अग्री नहीं कर रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि सब औरतें ऐसी ही होती हैं जो इस तरह से करना या पहनना पसंद करती हैं, बट ठीक है, कई लोगों की प्रोफेशन की मजबूरी होती है, ठीक है। और कहीं जगह पे हम ये भी कहेंगे कि डिमांड भी ऐसी है। अगर कोई मतलब, अगर कहते हैं ना, अगर डिमांड खत्म हो जाए तो सप्लाई भी खत्म हो जाएगी, राइट। तो हमें डिमांड जो है उसको भी घटाना पड़ेगा, तो सप्लाई। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो इट इज़ अ सिस्टम, राइट। हर जो एक कहते हैं ना
ताना बाना है वो आपस में जुड़ा हुआ है. सो बहुत कंफ्यूजिंग है ये सारी चीज़ें, एंड आई थिंक इसको बहुत टाइम लगेगा ठीक होने में, बट वेरी गुड मैसेज ही हैज गिवन. इट वाज वेरी ब्यूटीफुल वीडियो, वेरी इंप्रेसिव वीडियो, आई रियली लाइक इट. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो. आपको कैसी लगी? जस्ट डू लेट मी नो. आपके क्या व्यूज हैं इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा. एंड मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, और अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. जस्ट smash the subscribe button, right? So चले take your leave. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. Signing off. Bye bye.